كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز کے متعلق بات چل رہی تھی کہ جو بندہ پابندی اور اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے اس کے نماز میں سستی کی وجہ سے اللہ اس کو دنیا میں 5 طرح کے عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ اس کے چہرے سے صلاحہ کا نور ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا یہ اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوتی، اور پانچواں یہ کہ نیک لوگوں کے دعا میں اس کا حصہ نہیں رہتا۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور ماشاءاللہ بہت سارے بھائی رمضان کے اس مہینے کی برکت سے 5 ٹائم کے نمازی بنتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا کہ باقی کوئی بھی کام ہم 2-3 دن کر لیں ہم کہتے ہیں یہ عادت ہو گئی ہے۔ نماز پورا 1 مہینہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں عادت نہیں بنتی، 10 دن پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں عادت نہیں بنتی۔ وجہ کیا؟ نیت ہی نہیں ہوتی۔ اگر میری نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے 5 وقت کا ہمیشہ کا نمازی بنا دے تو اللہ بہت سارے اسباب بھی عطا فرما دیں گے، بہت سارے موقع بھی عطا فرما دیں گے، اور انشاءاللہ 5 وقت کا عادی نمازی بھی بن جائے گا۔ لیکن جویں ساڈی نیت جتنی ساڈی نیت اس حساب نال اللہ دے فیصلے۔ تو ایک تو یہ کوشش ہو کہ نمازوں کی پابندی صرف رمضان کی حد تک نہ ہو، بلکہ یہ جو انعامات ہے یہ رمضان میں بھی ملتے ہیں، رمضان سے ہٹ کر بھی ملتے ہیں، اور نماز میں سستی پر جو وبال یا عذاب ہے یہ رمضان کے علاوہ بھی یہی حکم ہے کہ جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے 5 طریقوں سے دنیا میں عذاب ہے۔ دوسرا، آج 26 رمضان ہے، رات طاق رات آ رہی ہے، اور طاق رات کے ساتھ ساتھ جمعے کی رات بھی ہے، تو جمعے کی رات کی اپنی فضیلت ہے، رمضان کی رات ہونے کی وجہ سے رات کی اپنی فضیلت ہے، اور طاق رات ہونے کی وجہ سے طاق رات کی اپنی فضیلت ہے۔ جہاں تک جمعے کی رات ہے اس کا مجھ سے یہ مطالبہ ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھوں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ درود کی کثرت یعنی جو میں اپنا ذکر بنا لوں، اپنا ورد بنا لوں، آج عصر کی نماز کے بعد سے میری تسبیح، میرا ورد، میرا ذکر کیا بنے؟ درود شریف۔ کیا بنے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद शरीफ की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है, और खास तौर पर जो जुम्मे के दिन का दरूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरू अलैहि सलात यौमल जुमा, भाई जुम्मे के दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ो। अक्सरू फरमाया। अब ज्यादा क्या है, उसकी गिनती बंदा खुद अपने अंदाजे से कर ले कि मेरे हिसाब से 500 ज्यादा है, 1000 ज्यादा है, 5000 ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो हुजूर मेरे और आपसे मुतालबा कर रहे हैं, अक्सरू अलैहि सलात यौमल जुमा, कि जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो। क्यों? बड़ा एजाज मिलता है जुम्मे के दिन दरूद पढ़ने वाले को, और बड़ा ही इकराम होता है उस बंदे का जो बंदा जुम्मे के दिन कसरत से दरूद पढ़ता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया, भाई तुम्हारा जुम्मे के दिन का पढ़ा हुआ दरूद मुझ तक डायरेक्टली अल्लाह पहुंचाते हैं। बाकी तो हम सबका अकीदा है कि आम दिनों में जो बंदा दरूद पढ़ता है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन सय्याहीन फिल अर्द, अल्लाह ने फरिश्तों की एक जुमात ऐसी बनाई है जो हवा में, इस फिजा में हर वक्त वो चल फिर रहे। काम उनका क्या, यबलुगूनी मिन उम्मती अस्सलाम, मेरा जो भी उम्मती दरूद पढ़ता है वो फरिश्ते की ड्यूटी है, वो उठा के हुजूर तक उस दरूद को पहुंचाते, ले जाते। जहां हुजूर के मदीने में किसी को अल्लाह हाजिरी की तौफीक दे, अल्लाह सबको नसीब फरमाए, वहां बाबू सलाम से दाखिल होकर जहां सलातो सलाम पेश किया जाता है, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती के सलाम को भी सुनते हैं, उम्मती के दरूद को भी सुनते हैं, और उम्मती के सलाम को सुनकर उसका जवाब भी देते। मैं और आप ना सुन सके जवाब, तो इसका ही मतलब ही नहीं कि जवाब है ही नहीं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन के दरूद को उम्मत के लिए बड़ा बेहतरीन फरमाया, फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैहि। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद के बारे में फरमाया, मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मेरा उम्मती मुझ पर एक दरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके बदले उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाते। और दूसरी रिवायत में हुजूर ने फरमाया, जो मेरा उम्मती मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है, उस पर 10 रहमतें, 10 दर्जे उसके जन्नत में बुलंद, 10 गुना उसके माफ होते हैं। और कुरान करीम की जो आयत है, अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, हुजूर को तुम्हारे दरूद की कोई जरूरत नहीं है। दरूद पढ़ोगे अपना फायदा होगा, दरूद पढ़ोगे अपने नेकियों में इजाफा होगा, दरूद पढ़ोगे हुजूर के साथ मोहब्बत बनेगी, दरूद पढ़ोगे कल क़यामत के दिन हुजूर का पड़ोस नसीब होगा, दरूद पढ़ोगे कसरत से, जन्नत में अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा देगा। तो अपना फायदा हुआ, वगरना उस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होना और फरिश्तों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना काफी है। और फिर मैं अक्सर कहा करता हूं, तो ताला ने जो कुरान के इस आयत में सीगा इस्तेमाल फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, पहले बड़ी ताकीद की बात की, इन्नल्लाह, इन्ना, फिर वाओ, फिर हु ज़मीर, फिर युसल्लून, रहमत बेचते हैं और बेचते रहेंगे। होता है ना, माजी, एक मुजारे, एक अमर, ये अफआल है, फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर। माजी गुज़श्ता जमाने में, गुजरे हुए जमाने में किया एक आदमी ने, मुजारे करता है या करेगा
मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाने पाए जाते हैं। तो ये सल्लून अल्लाह बेचते हैं और बेचते रहेंगे, फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों अगर अपनी मुकद्दर चमकाना चाहते हो, ईमान वालों अगर अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा चाहते हो, ईमान वालों अगर अपनी परेशानियां खत्म करना चाहते हो, ईमान वालों अगर अपने आप को मुसीबतों से बचाना चाहते हो, ईमान वालों अगर अपने आप को नबी की दुआओं में शरीक कराना चाहते हो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी हुजूर पर दरूद पढ़ा करो। उलमा ने लिखा है दो काम इसमें, एक में ये बंदा अपने रब का नकल उतारता है और दूसरा काम ऐसा है जिसमें ये बंदा अपने रब के साथ शरीक होता है फेल में, अमल में। वैसे तो शिर्क से पाक है, ला शरीक लहू वला नजीर लहू वला वजीर लहू वला मिसल लहू वला मिसाल लहू, उसकी जात है। जहां ये बंदा नकल उतारता है, हालांकि अल्लाह की नकल कोई उतार ले सके मिसली ही शय है, लेकिन जिस वक्त बंदा कुरान की तिलावत में लग जाता है, कुरान की तिलावत में लगना गोया किसकी नकल उतारना है? अल्लाह ने तिलावत की है इस कुरान की। मेरे और आपके पास जो कुरान है ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। अल्लाह ने खुद इसकी तिलावत फरमाई है अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक। इसीलिए तो अल्लाह का कलाम है ना। जब हम पढ़ते हैं सूरह तौहा में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दरख्त से जो आवाज आई, वो क्या आवाज थी? इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री, कि मैं अल्लाह हूं। अब मैं और आप भी यही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसी तरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अल्लाह बाप फरमाए नौजुबिल्लाह, हम अल्लाह तो नहीं है, लेकिन हम नकल उतार रहे हैं। अल्लाह ने जो कलाम किया उस कलाम की नकल कर रहे हैं। शुरू से लेकर आखिर तक बंदा कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ता जाता है और अल्लाह की नकल उतारा। और जहां वो फेल जिसमें ये बंदा अपने रब के साथ उस अमल में शरीक होता है, बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। बंदा और जितने आमाल है वो करी जा रहा है, लेकिन अल्लाह वो उनमें से कोई भी काम नहीं करता, सजदा नहीं करता, रुकू नहीं करता, फलाना काम फलाना काम फलाना काम। लेकिन एक काम ऐसा है कि बंदा भी करते हैं और वो अल्लाह भी करते हैं, वो है दरूद का पढ़ना। बंदा दरूद पढ़ता है ना, तो अल्लाह खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन। तो जुम्मे के दिन का जो बेहतरीन वजीफा है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद। बाकी जिक्र अस्कार बंदा जुम्मे वाले दिन अगर एक साइड पे कर ले, जिसकी जितनी जिक्र की आदत है, जो तस्बीहात है, उन सब की जगह अगर ये बंदा सिर्फ और सिर्फ दरूद का विर्द करता रहेगा, दरूद का वजीफा करता रहेगा, तो ये दरूद का वजीफा इसके लिए, इसके सारे कामों के लिए काफी हो जाए। लेकिन ये नहीं कि साड़ी आदत होती है दरूद शरीफ तो पढ़ेंगे लेकिन नमाज, भाई दरूद कबूल ही था जो नमाज बंदा पढ़ेगा। सिर्फ तस्बीह लेके तो बंदा बैठ जावे तो मलंग बन के ते सिर हिलांदा रहे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ भी नहीं हासिल होगा। और ये मैंने आपको कहा कि आज असर के वक्त से ये जुम्मे का जो मुबारक सात है वो सात शुरू हो जाता है। तो जुम्मे की रात है, फिर ताकरात भी है, ताकरात की अपनी फजीलत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम ने जो ताकरात है उस रात को हुजूर ने फरमाया कि ताकरात लैलतुल कदर हो सकती है। 21 है, 23 है, 25 है,
और आज 27 है। तो मैं इस नीयत के साथ, इस यकीन के साथ आज की रात इबादत करूं कि आज की रात लैलतुल कदर है, और आज की रात के लैलतुल कदर को जिंदा रखने से, लैलतुल कदर की इबादत से अल्लाह मुझे वो अजर सवाब अता फरमाएगा जो लैलतुल कदर में इबादत करने वाले को मिलता है। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि लैलतुल कदर का सवाब उन्हें मिलेगा जिन्हों पता लगेगा। बाज़ औक़ात पूछते नहीं एक दूसरे को, कोई पता लगा, कोई निशानी नजर आई, कोई नूर नजर आया? भाई लैलतुल कदर दे कबूलियत वास्ते, लैलतुल कदर दे इबादत तो सवाब पाने वास्ते न नजर आना जरूरी और न पते का चलना जरूरी। मुझे पता चले या ना चले, मुझे कोई शय नजर आवे या ना आवे, मैंने दरख्त सजदा कर दे नजर आवे या ना आवे, मुझे उससे गरज नहीं है। मैंने तो गरज है अपनी इबादत ना, कि मुझे अल्लाह इबादत की तौफीक दे दे। मैं 2-4 सज्जे कर लेता हूं, मैं 2-4 नफल पढ़ लेता हूं, मैं 2-4 मरतबा तस्बीह कर लेता हूं, मैं 2-4 आयतें, 2-4 रुकू कुरान की तिलावत कर लेता हूं, मैं 2-4 अपने रब से बातें कर लेता हूं, मैं 2-4 बार अपने रब से माफी मांग लेता हूं, मेरे लिए लैलतुल कदर का सवाब है और पा गया मैं। ताकरात होने की निस्बत से मैं और आप ये भी मेहनत करें कि ताकरात में जो इबादतें की जाती हैं मैं वो इबादत करूं और अपने आप को ताकरात की इबादत और सवाब का मुस्तहिक बना लूं। और नंबर 4 पर ये कोशिश करनी है कि आखिरी रातें हैं रमजान की, आज की रात है, उसके बाद चंद रातें रह जाएंगी। वो महीना जिसके दिन को भी अल्लाह ने मोमिन के लिए जन्नत में जाने का जरिया बनाया, जिसकी रात को भी अल्लाह ने मोमिन के लिए जन्नत में जाने का जरिया बनाया, जिसके दिन के रोजे को अल्लाह ने फर्ज किया, जिसके रात की तरावी को अल्लाह ने इस उम्मत के लिए बाइस सवाब और बख्शिश का जरिया बनाया, जन्नत का जरिया बनाया। वो महीना खत्म होने को है जिस महीने के शुरू होते ही अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए थे और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो महीना हमारे हाथ से निकलता जा रहा है जिस महीने के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लिए बख्शिश का महीना, अपने उम्मत के लिए रहमत का महीना, अपने उम्मत के लिए जहन्नम से आजादी का महीना करार दिया। सोचना अपने बारे में, फिक्र करनी अपने बारे में कि मैं इस पूरे माह के अंदर की कमाई की थी। हर बंदा जो भी कारोबारी है या सीजन लगाने वाला बंदा, सीजन लगा के एंड पे वो जाके हिसाब लगाता है कि मैं की कोई कमाया। और ताजर लोग ना, कारोबारी लोग, मसलन जो पिछले साल उस सीजन करोड़ रुपए कमाया सी, इस साल उस सीजन 50 लाख कमाया नफा। पिछले साल का नफा कितना सी? करोड़। इस साल का नफा होगा यार बड़ा नुकसान है। पूछो भाई किवें नुकसान? 50 लाख तो तू कमाया, नफा है तेरा? कहता नहीं नुकसान होया। किवें नुकसान होया? पिछले साल कितना नफा सी? तो 50 लाख दे नफे ने कम होने को नुकसान समझता है कि नहीं समझता? मैं अपने बारे में सोचूं कि मैंने इस माह मुबारक में क्या कमाई की, कितने कुरान मेरे खत्म हुए, कितनी नमाजों की पाबंदी रही, कितनी नफली इबादत की पाबंदी रही, कितना मैंने इसमें नेकियां कमाई, कौन कौन से नेकी के काम मैंने किए, कितना सदका खैरात में मैंने हिस्सा लिया, कितने गरीबों से मैंने हमदर्दी और गमखारी की है, कितना इस महीने में मैंने सब्र सीखा। कितने काम थे इस महीने में करने के, कितने काम थे इस महीने में सीखने के, कितने काम थे इस महीने में अपनी आदत डालने के, मैंने कितना किया। महीना अपने इख्तिताम की तरफ, महीना खत्म होने को है, मुझे इस महीने से क्या मिला? एक एक रोजे से
नूरानियत मिलती है, एक एक रोजे से अल्लाह की महबूबियत मिल जाती है, एक एक रोजा बख्शिश का जरिया बनता है, एक एक रोजा सिफारशी बनता है। आया मेरे हक में ये हुआ या नहीं हुआ? और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जुम्मे के दिन की बात, मिंबर पर चढ़ने की बात और जिब्राइल अमीन की बद्दुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद में उसकी तशरीह और वजाहत करना कि हलाक हो जाए वो बंदा, मुस्तहिक है वो बंदा इस बात के कि उसकी बर्बादी का ऐलान किया जाए। कौन? जिस पर रमजान का पूरा महीना गुजर जाए और वो अपने रब से अपनी बख्शिश न करवा। तो जो मेन इस माह मुबारक का काम है वो ये कि मैं और आप अपने आप को अपने रब से बख्शवाएं, माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, लकीरें मारे, लकीरें लगाए, लकीरा कड़ा, तौबा ताइब हो जाए, हाथ जोड़े, तरले ले अपने रब के, माफी मांगे कि अल्लाह तू ही ये माफ कर। और जब रब से बंदा माफी मांगता है, उसकी बड़ाई बयान करता है, उसकी उलूहियत को बयान करता है, उसकी वहदानियत को बयान करता है, उसके रहम को बयान करता है, उसके अपने बंदे के साथ करम वाले मामले को बयान करता है, उसका अपने बंदे के साथ मोहब्बत और ताल्लुक को बयान करता है, फिर अल्लाह से बंदा माफी मांगता है तो अल्लाह बड़े खुश होकर अपने बंदे को माफ करते हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आज का दिन, आज की रात, कल का दिन बड़े मुबारक साथ है और हम बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं और सीजन का एंड हो। आजकल आप देखें ना जरा कि जो जनरल स्टोर है, यहाँ पर चीजें बिकती हैं, चीजें मिलती हैं, बच्चों के, औरतों के जूते हो गए, कपड़े हो गए और दूसरे जरूरत की चीजें हो गई। अब आजकल वो कहते हैं जी सीजन है, और सीजन भी कितने दिन का? ईद के दिन तक उन्होंने देखना है, तो वो रात गए तक दुकान बंद नहीं करते। फिर जब आखिर रात हो ना, जिसको हम लोग चांद रात बोलते हैं, उस दिन चौकी छोटा सारा शहर है, यहां भी चले जाओ तो यहां पर भी पूरी रात दुकानें। उनको पता है आज जो कमाना है कमा लो, आज जो कमाई करनी है कमाई कर लो, कल फिर साढ़े को किसी भी नहीं आओ। तो सीजन के मेरे और आपके पास भी यही 2-3 दिन है। रमजान का जो सीजन है, नेकियों का जो सीजन है, कम नेकियों के कमाने का जो सीजन है, बख्शिश, रहमत और मगफिरत का जो सीजन है, हमारे पास भी टाइम बड़ा मुख्तसर है। तो हम भी अपने रब से अपने ताल्लुक को, अपने इबादत को जरा बढ़ाएं, कोशिश करें। पहले ज्यादा सोता था, अब कम सो, पहले कम मांगता था, अब ज्यादा मांगो, पहले इबादत कम करता था, अब ज्यादा करो, क्योंकि दिन जो खत्म होने को है। कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन